Hi students, welcome back to our YouTube channel Risha Education. This is Shashi Goel and this is the fourth lecture of the SK Mappa real number and the 13th lectures and the 13th video of the SK Mappa lecture series. So today we will see theorem 2.4.4, 2.4.5 and some order properties of R. We will see the definition of a positive set and we will also prove some more theorems 2.4 and 2.4.8 like this. So let's begin. So now first theorem is 2.4.4 which says let A, B, C belongs to R, means A, B, C are real number, and if A dot B equals to 0 then implies A equals to 0 or B equals to 0. So we have to prove if A dot B equals to 0 then either A equals to 0 or B equals to 0. So we will assume that A is not 0. So we have to prove if A not equals to 0 then B must be 0. So if A is not equals to 0 then we also know by the algebraic properties of R that the inverse of A will exist. So if means multiplicative inverse of A will exist, means if A belongs to R, so 1 by A belongs to R by the algebraic property. So if you multiply it with 1 by A both the sides, means if you multiply it with A dot B equals to 0, if you multiply it with 1 by A both the sides on the left, and by the associativity we can take the bracket like this, because initially bracket was like this, but due to associativity of multiplication we can take bracket like this, and 1 by A and A is 1, so 1 dot B equals to 1 B, and 1 by A into 0 equals to 0. So B equals to 0. Similarly you can verify if B not equals to 0 then 1 by B exists, and if you multiply with 1 by B both the sides then A equals to 0. So either A is 0 or B is 0. So I think it is clear. Now our theorem is 2.4.5 which is let A comma B belongs to R, then A minus B is equals to minus A into B is equals to minus A dot B. So how we can prove it? So firstly we have to take minus B plus B. What is the value of minus B plus B? Equals to 0. What is my whole idea? If I will take minus B plus B which is equals to 0, then I will multiply it with A on the left side, means I will multiply it with A in the left side on the both the sides. So it will becomes, by the distributive law, A into minus B plus A dot B equals to A dot 0 equals to 0. So A dot minus B is equals to minus A dot B, which is proved. Similarly we can verify minus A dot B equals to 0 is equals to minus AB. So for proving this we have to take minus A plus A equals to 0, and if you multiplied B in the right side, so so we get minus A into B plus A dot B equals to 0. So minus A dot B is equals to minus A dot B. So it is proved. Now we have to prove minus A into minus B is equals to A dot B. So how can we prove it? For proving this, if we take minus A to be P, then it will become minus P into minus B for our simplicity. But from equation 1 what we know, A dot minus B is equals to minus A dot B, this minus, so it will become minus P dot B. Now if we take the value minus A here, so again by this it will become minus of minus A into B. So we can also see here, if you will take P equals to minus A, then minus A into minus B will become P into minus B, because the value of minus A is P. So P into minus B is equals to minus P into B by the first formula, means by this theorem. Similarly
what was the value of p? This was minus a. So if we will put the value of p here, then it will become minus into minus a into b. Now again by the first theorem, this, if we will put the value of this, then minus a into b is equals to minus a dot b. If we will take this, then it becomes minus a dot b. And again by the theorem 2.4.3, this theorem, as we already proved it, minus of minus a is equals to a. So if we will use this theorem, then minus of a dot b, it becomes a dot b, and hence it proves our theorem. Now we have to prove order properties of R. So similarly, as we proved for the rational number, order properties of a rational number, similarly we can see the order properties of R. On the set R, a linear order relation less than is defined by A is less than B if A belongs to R, B belongs to R, and A is less than B. Similarly, like we already proved that we already see what is order relation, means total order relation is same as the linear order relation. And how the order relation is defined, it is defined by the symbol less than, and its meaning is if A will be less than B, or this is simply a relation. We can also say that A is related to B or A is less than B as our usual meaning, and it satisfies the following conditions like trichotomy, transitivity. If we add something on both the side, it will never affect. And if C is positive, then if you multiply it with C on both the sides, if A is less than B and if you multiply it C in both the sides, then this sign will never change, means this symbol. So ये सब कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब आर के, जो हमने ऑलरेडी रैशनल नंबर में देखा था. नाउ ऑन द सेट आर लीनियर ऑर्डर रिलेशन लेस देन इज डिफाइंड बाय दिस, ये हमने देख लिया, इज लेस देन बी एंड इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या क्या कंडीशन है? ट्रिकोटोमी हमने पढ़ा था ऑलरेडी, अगर ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड. या तो ए जो, अगर ए और बी दो नंबर होंगे तो हम इसे कंपेयर तो कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर रिलेशन है, और हमें पता है कि इन द लीनियर ऑर्डर रिलेशन एनी टू ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी कॉम्पेरेबल. सो कॉम्पेरेबल लाइक मीन्स रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, या तो ए रिलेटेड टू बी होगा या बी रिलेटेड टू ए होगा, लाइक दिस. सो बोला जा रहा है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ए और बी उठाते हैं तो आइदर ए इज़ लेस देन बी होगा, बी इज़ लेस देन ए होगा, या फिर ए इक्वल्स टू बी होगा. तो इन तीनों में से एग्जैक्टली एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही नंबर. तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप रियल नंबर से कोई भी दो नंबर उठा लो, लाइक 1 and 0, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 इज़ लेस देन 1, तो ये से हम लिख सकते हैं. तो ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी है, यानी तीन का लॉ. फिर लाइक दूसरा है हमारा ट्रांजिटिविटी. इसमें क्या होता था, अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, देन ए इज़ रिलेटेड टू सी होता था. तो यहाँ पे वही करना है कि अगर ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी, ए इज़ लेस देन बी है, बी इज़ लेस देन सी है, देन ए मस्ट बी लेस देन सी. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी. Now our third law is, if A is less than B, then if we add C on both the sides, then the inequality sign will never change. Means if A is less than B, then A plus C is less than B plus C. Now if A is less than B and C is positive, then if you multiply it with C on both the sides, then equality sign will never change. Means if A is less than B, then AC will less than BC. Now note, A is less than B is equivalently expressed as B greater than A. So
अब खुद देखो कि अगर a इज़ लेस देन b है तो यहाँ पे तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेटर का साइन है ये b की तरफ है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि b इज़ ग्रेटर देन a होगा। नाउ द लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी स्टेट्स दैट अ रियल नंबर a इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग: a इज़ लेस देन 0, a इज़ इक्वल्स टू 0 और a इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स लाइक 0 इज़ लेस देन a, that is this and this. A is said to be the positive real number if a is greater than 0. It is the usual meaning, and we already saw in the rational number order properties of a rational number. A is said to be the negative real number if a is less than 0. It is very clear. We use the symbol a is greater than equals to 0 to mean that a is either positive or 0, means it contains two values, either a is greater than 0 or a equals to 0. Similarly, if a is less than equals to 0 to mean that a is either negative or 0. So I think it is also very clear. Next, if a, b, c belongs to R and if a is less than c and c is less than b, so we can represent it like this, means c will be the value between a and b, means c lies between a and b. Note the field R together with the ordered relation defined on the R satisfying the order 1 to 4 becomes an order field, means since R satisfied this 4 properties of order field, so that's why we can say that it's a ordered field. R real number is also a ordered field, similarly as Q. So आप ये याद रखना कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इस 4 प्रॉपर्टीज़ को जो भी सेट सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर्ड सेट होगा, और क्योंकि वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो हमने ऊपर 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसको भी सेटिस्फाई करता है रियल नंबर, इसलिए फील्ड भी है तो इसलिए हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं. सो नेक्स्ट, है हमारा ऑन अ फील्ड f प्लस डॉट, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर f इज़ जस्ट अ सेट विद द टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मीन्स हम इस f के कोई भी अगर एलिमेंट को उठाते हैं तो उसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बात कर सकते हैं. तो एन ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव सेट इन f. अब देखो ये पॉजिटिव सेट क्या होता है, सबसेट p ऑफ f इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेट. क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर a बिलोंग कर रहा है और b बिलोंग कर रहा है p में, तो उनका सम भी बिलोंग करना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करना चाहिए, पहला. दूसरा, अगर c बिलोंग कर रहा है f में, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड. अगर c बिलोंग कर रहा है f में तो आइदर c बिलोंग करना चाहिए p में, या c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या माइनस c बिलोंग करना चाहिए p में, तभी हम बोलेंगे कि ये जो सेट है ये पॉजिटिव सेट है. सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव सेट. तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर f को लेता हूँ रैशनल नंबर, ठीक है, मुझे पता है रैशनल नंबर फील्ड होता है, और उसका अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ z, तो आप बताओ क्या ये पॉजिटिव सेट होगा z? सबसे पहला z सबसेट तो है q का, ये सही है. अब अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर हम p से उठाते हैं, यानी कि इसी से z से उठाते हैं, उनका समेशन z में होगा, ऑब्वियसली होगा, दोनों का प्रोडक्ट z में होगा. z के अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे तो z में ही होगा, सही है. पर देखो थर्ड कंडीशन, कोई भी अगर c बिलोंग कर रहा है f में, तो अगर मैं ले लेता हूँ 1/2, तो ना तो 1/2 बिलोंग कर रहा है z में, ना ही -1/2 बिलोंग कर रहा है, ना ही 0 बिलोंग कर रहा है. मतलब c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, c तो ये 0 नहीं है ये, जिसका मतलब ये कंडीशन फेल है. इसका मतलब इसे हम पॉजिटिव सेट नहीं बोल सकते. इसे आप अभी हम देखेंगे इसका यूज़ क्या है. हम ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव सेट के भी टर्म में. तो हम देखते हैं कैसे. द पॉजिटिव सेट p इज़ यूज टू डिफाइंड एन ऑर्डर्ड लेस देन इन f. कैसे, देखो, अगर a भी बिलोंग करेगा f में, कोई दो एलिमेंट होंगे f के, और a इज़ लेस देन b इफ़ एंड ओनली इफ b माइनस a बिलोंग्स टू p. तो अब ये हम कैसे बोल रहे हैं. तो देखो अभी हमने पढ़ा कि a लेस देन b का मतलब हम लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a, ये भी लिख सकते हैं. अब फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट a इज़ ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ a माइनस 0 बिलोंग्स टू p, दैट इज़ a बिलोंग्स टू p. अब हमने ये देखा है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब ऊपर ही हमने पढ़ा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब कि a माइनस 0 जो होगा वो बिलोंग करेगा p में. अब देखो ये a माइनस 0 क्यों बिलोंग कर रहा है p में, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि
1 minute. So why we are taking this a is minus 0 belongs to p, that is a belongs to p, from the definition, because if a is less than b, then b minus a belongs to p. Similarly if 0 is less than a, then a minus 0 belongs to p. So if a minus 0 belongs to p means what? A belongs to p. Now in the order properties, order 1 to 4 can be deduced from the following definitions. So what is the order 1 property? If a comma b belongs to f, what was our first order property? Law of trichotomy. It means either if a comma b belongs to f, then either a is less than b, b is less than f, b is less than a, and or a equals to b. This is the law of trichotomy. How can we define it in the terms of p? Either a minus b belongs to p, or minus of minus a minus b belongs to p, or a minus b equals to 0. This is exactly same as this. How can we verify it? If a minus b belongs to p, and how we defined p? B minus a belongs to p, it means a is less than b. So if a minus b belongs to p, it means b is less than a. Similarly, if a minus b equals to 0, then b equals to a. And if minus of minus a minus a minus b belongs to p, it means what? We can simply say, if this number belongs to p, then ये हम कहाँ से लिख रहे हैं ये वैल्यू? तो अगर आप देखोगे तो अभी हमने प्रूव किया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? इट वाज इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू p. अगर a बिलोंग्स टू p है देन a इज़ ग्रेटर देन 0. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दोनों साइड साइनों को, मतलब कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो a बिलोंग्स टू p, और a बिलोंग अगर p में करेगा तो a ग्रेटर देन 0 होगा. तो इसका मतलब ये तो p में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसकी हेल्प से, तो ये माइनस a प्लस b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि b इज़ ग्रेटर देन a. से हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज़ लेस देन b, यानी a और b में बड़ा b है, तो इस साइड भी साइन लिख सकते हैं. तो ये हो गया. तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी ऑर्डर 1. अब ऑर्डर 2. अब हमारा सेकंड ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर प्रॉपर्टी था कि अगर a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी. तो इसे हम p के टर्म से प्रूव करेंगे. ऑब्वियस सा बात है कि अगर a लेस देन p मतलब क्या होगा कि b माइनस a बिलोंग्स टू p, यानी आप इसको इधर लेके जाओगे तो b माइनस a बिलोंग्स टू p, यानी पॉजिटिव आपको लेना है. सिमिलरली c माइनस b बिलोंग्स टू p, और अगर दोनों को ऐड कर दे तो भी बिलोंग्स टू p करेगा. हमने पढ़ा था कि अगर a बिलोंग्स टू p, b बिलोंग्स टू p, p का प्रॉपर्टी, देन a प्लस b बिलोंग्स टू p. तो उससे जैसे हम ऐड करेंगे तो c माइनस a वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बिलोंग्स टू p. ऐसे भी देख सकते हैं, ये और ये कट जाएगा, तो c माइनस a बिलोंग्स टू p, दैट इज़ a इज़ लेस देन c. Similarly, we can prove the third property. It was if a is less than c and if we add both sides c, then the inequality sign does not affect it. So a is less than b, so we can say b minus a belongs to p, since a is less than b. Now if we add since b minus a belongs to p, then b plus c minus a plus c. Why b plus c minus a plus c belongs to p? Simply see here. So it is simply because if b minus a belongs to p, then if we add and subtract c, then it will also, because c and minus c will be cancelled out, then it will also belongs to p. Now this is nothing, just the rearrangement of this, means b plus c, and if we take minus common, then it will become a plus c. And if b plus c minus a plus c belongs to p, it means this is positive greater than 0. And if we take
a plus c to the left, then it will become b plus c is greater than a plus c, or we can write a plus c is less than b plus c. So it is the proof. Now the order 4, which was if a is less than b and c is greater than 0, then if we multiplied with c on the both the side, then inequality sign will never change. So how can you prove in the terms of p? If a is less than b, it means b minus a belongs to p, and if c greater than 0, it means c also belongs to p, and we also studied if a comma b belongs to p, then a dot b belongs to p. So the product of these two belongs to p, it means c times or b minus a times c belongs to p, this, so it will become bc minus ac belongs to p. That is, if bc minus ac belongs to p, it means bc is less than ac, if bc minus ac greater than 0, then bc minus ac belongs to p, it means bc minus ac is greater than 0, it means bc is greater than ac, or ac is less than bc. So it was our proof. So we already defined all the 4 properties in the terms of p. The field R is an ordered field, then the positive set in R is called the set of the all positive real numbers, and it is denoted by R positive. So इससे हमने क्या देखा कि हम सिंपली R को, रियल नंबर को, पॉजिटिव नंबर के सेट में भी डिफाइन कर सकते हैं. और हमने यहाँ पे ओवरऑल क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ. यहाँ तक तो हमने सिंपल ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ देखा था, ये सब ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ था. ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब a लेस देन 0 हो तो इसका मतलब नेगेटिव, a इक्वल्स टू 0 हो तो 0, और a ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव. तो ये सभी था. फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉजिटिव सेट. पॉजिटिव सेट का हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था. ऐसे भी आप सोचो कि अगर r रियल नंबर हो तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर a पॉजिटिव रियल नंबर हो, b पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा. a और b अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा. अगर c कोई भी नंबर जो बिलोंग करे f में, कोई भी रियल नंबर में, तो आइदर c बिलोंग्स टू p, c इक्वल्स टू 0, माइनस c बिलोंग्स टू p. ये सही है, क्योंकि आप देख लो, मान लो मैंने ले लिया -√2, तो -√2 तो नहीं बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर में, लेकिन माइनस ऑफ -√2 ये बिलोंग कर जाएगा. यानी कि c तो बिलोंग नहीं कर रहा है p में, लेकिन देखो -c बिलोंग कर जा रहा है, p में बोला जा रहा है कोई सा इसमें से एक प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए. तो एक्चुअली ये p हमारा जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर था, और अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं f को, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर था. तो ऐसे सेट था. इसके टर्म्स में हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को सबको डिफ़ाइन किया. तो आप ये एक बार फिर से देख सकते हो कैसे हमने डिफ़ाइन किया था. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे. हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, लेट a बिलोंग्स टू r. a कोई भी रियल नंबर है, देन a ग्रेटर देन 0 होगा. अगर a ग्रेटर देन 0 है तो माइनस a लेस देन 0 होगा. ये आप देख सकते हो बहुत ईजिली. a अगर मान लो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर 5 लेते हैं तो -5 ऑब्वियस सा बात है लेस देन 0 होगा. तो बट इसे हमें प्रूव करना है ऑर्डर प्रॉपर्टी का हेल्प ले करके. और हम ये भी जानते हैं, इनइक्वालिटीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो हम ये जानते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो और अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज हो जाता है. तो अगर नेगेटिव वैल्यू -1 से आप अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा. बट हमें ये यूज़ नहीं करना है, हमें लॉ ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे प्रूव करना है. तो देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा. तो देखो, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. पहला तो a बिलोंग कर रहा है r में, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 होगा. और हम लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी से जानते हैं कि आइदर -a इज़ लेस देन 0 और -a इज इक्वल्स टू 0 और -a ग्रेटर देन 0. तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि -a अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका हम कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम आएगा. लेकिन पहले हम इसका देखते हैं. -a हमें लाना क्या है, -a इज़ लेस देन 0, तो हम लेके चलते हैं -a ग्रेटर देन 0 होगा. तो अगर -a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब -a ग्रेटर देन 0, a बिलोंग्स टू r, तो -a प्लस a जो होगा वो ग्रेटर देन a हो जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी से. क्योंकि अगर कोई वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो उसमें हम दोनों साइड कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं. तो हमने a ऐड कर दिया दोनों साइड. तो जैसे हम दोनों साइड a ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a इज़ लेस देन 0, बट विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेके चला है कि a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है. तो ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता है. अब नेक्स्ट हमारा अगर -a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो अगेन हम लिख सकते हैं a प्लस -a इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस ए का वैल्यू तो हमारा 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो जैसे ही हम कैंसलेशन लॉ लगाएंगे या फिर हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस माइनस ए कितना होगा, ये 0, यानी कि ए इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बट ए तो हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन हमारा, क्योंकि हमने लेके चला था ए ग्रेटर देन 0, तो अगेन हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है। तो इसका मतलब ए ना तो ये हो सकता है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी से, या तो ए माइनस ए लेस देन 0 होगा, या तो इक्वल्स टू 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा। बट ये दोनों नहीं पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल हो। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बट ये सब बहुत यूज़ आता है आपके थ्योरम्स को प्रूव करने में। तो आप ये बहुत ही अच्छे से देखो और समझो, क्योंकि कितनी बार बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स प्रूव नहीं होते हैं सिर्फ ये पता नहीं होने के कारण। तो ये सब प्रॉपर्टीज आई थिंक आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ये है सेकंड, ए इज़ लेस देन 0 देन माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0। ये आप सेम इसी ऊपर वाले जैसा प्रूव कर सकते हो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी का यूज़ करके, कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो आपको ये लिखना है जब ए हमारा लेस देन 0 है, उसके लिए आप सेम देखना, ये सेम प्रॉपर्टी है। आप फिर वैसे ही लेकर के चलना कि माइनस ए को पहला लेस देन 0, तो जैसे आप माइनस ए को लेस देन 0 लेके चलोगे तो आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, माइनस ए प्लस ए इज़ ग्रेटर देन ए इस टाइप से लिखोगे। सॉरी, आप क्या करोगे, लिखोगे कि इफ़ माइनस ए इज़ लेस देन 0 है तो हम दोनों साइड ए ऐड कर सकते हैं। तो ए ऐड करने से होगा कि माइनस ए, ये तो 0 हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो कि इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। उसी तरह से आप इसको लेके चलोगे तो फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 0 आने लग जाएगा, तो ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, तो ये होगा अल्टीमेटली वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं 2.4.8। ये क्या है हमारा, कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों का पॉजिटिव, अगर दोनों को प्लस करेंगे ए प्लस बी तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये सब बहुत ही ईजी प्रूफ है, इसे हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है और बी अगर मान लो ग्रेटर देन 0, तो उसे हम रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हमें पढ़ा है कि रियल नंबर, क्योंकि ये जो बी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कोई रियल नंबर ही होगा। तो हम ओवरऑल रियल नंबर के लिए भी देख सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड बी ऐड करें, जो हमने पढ़ा था ऑर्डर थर्ड प्रॉपर्टी, उसके हेल्प से, तो ए प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन बी, और b क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ा है। तो अब लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी अगर हम यूज़ करें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है हमारा, देखो हमने क्या किया, a ग्रेटर देन 0 था, b दोनों साइड ऐड किया तो ये b आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू तो इससे बड़ा है और ये वैल्यू इससे बड़ा है, तो a प्लस बी तो बड़ा होगा ही, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर, सिमिलरली फर्स्ट के जैसे आप सेकेंड को प्रूव कर सकते हो। सेकेंड को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि a जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब दोनों साइड अगर b ऐड करें तो a प्लस बी जो होगा वो लेस देन b होगा। और अब देखो ऑलरेडी दिया हुआ है b लेस देन 0 है, तो अब खुद सोचो कि b जो है वो 0 से छोटा है और a प्लस बी b से भी छोटा है, तो a प्लस बी 0 से छोटा होगा ही। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का प्रूफ। फिर थर्ड हमारा क्या है कि a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 देन a b ग्रेटर देन 0, तो आप ये भी कर सकते हो। a क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0, हम दोनों साइड b क्योंकि पॉजिटिव है तो सीधे फोर्थ प्रॉपर्टी से, ऑर्डर प्रॉपर्टी से हम दोनों साइड b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सिमिलरली इफ a इज़ लेस देन 0 b इज़ लेस देन 0 देन अगेन ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आप देखो कैसे प्रूव कर सकते हो। फोर्थ नंबर, तो देखो a इज़ लेस देन 0 b इज़ लेस देन 0, इसका मतलब a इज़ लेस देन 0 एंड माइनस b इज़ ग्रेटर देन 0। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर हमने प्रूव किया था ये कि माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से ये साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो ये हम प्रूफ यहाँ पे हमने किया था प्रूफ, देखो ये वाला, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन माइनस ए इज़ लेस देन 0। तो इसका हम यूज़ करेंगे माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखो फिर सेम ये थर्ड वाला जैसा कंडीशन हो गया कि a इज़ लेस देन 0 है और माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी से। तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स माइनस बी इज़ लेस देन 0। अब फिर ये आ गया माइनस ए बी इज़ लेस देन 0, तो अब हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने देखा था ये वाला, कि अगर a इज़ लेस देन 0 हो तो माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो सेम अगर आप देखो तो ये सेम है बिल्कुल। कैसे सेम है
तो ये देखो माइनस ए बी इज़ लेस देन ज़ीरो है, तो ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ है आपका ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बी इज़ लेस देन ज़ीरो, देन ए बी इज़ लेस देन ज़ीरो। ये एकदम सेम इसके जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी ए आपको ग्रेटर देन ज़ीरो दे रखा है और बी लेस देन ज़ीरो है। तो अब बी को लेके चलो, बी इज़ लेस देन ज़ीरो, दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज़ लेस देन ज़ीरो। हो गया ये प्रूफ। तो ये सारे प्रूफ क्लियर हो गए और टाइम भी हो गया 30 मिनट, जो मैंने आपको बोला था कि मैं ये 2.4.8 तक करवाऊँगा, तो मैंने करवाया। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 2.4.9, 2.4.10, 2.4.13, मतलब हम 4-5 थ्योरम्स प्रूव करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ देखेंगे। तो ये सब हम देखेंगे अपने कल के क्लास में। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था, रियल नंबर का ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। उससे पहले हमने 2 थ्योरम्स प्रूव किए थे, ये 2 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर लेना और ख़ुद से प्रूव करके भी देखना। और फिर हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ देखा था, फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव सेट के बारे में देखा और ऑर्डर फील्ड को पॉजिटिव सेट के टर्म्स में डिफाइन किया। फिर हमने कुछ थ्योरम्स प्रूव किया 2.4.7, 2.4.8। सो ये था आज का हमारा क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।